Good evening, everyone. Welcome back to the weekly webinar cum training session of Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome all the attendees here. I am Anagha representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today we are going to talk about banking management in Tally Prime. So before moving ahead to the today's topic, let's have a small introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into multiple segments, that is sales, services, solutions, implementations, and development. We are into the multiple softwares, that is Tally Prime, SAP B1, Bittrex 24 CRM, and Skill India. So now moving ahead with the today's topic. So now the speakers are here. The presentation will be done by Miss Anam. So Anam, are you here? Yes, ma'am. Okay. And the live demonstration will be done by Mr. Firoz. So Firoz, are you here? Yes, ma'am. Okay. Hearty welcome all of you. So now I request both of you to move ahead with your presentation. Okay, ma'am. Thank you. Hello, all. Very good evening to one and all present here. Myself, Miss Anam Sheikh, representing on behalf of Raj Lakshmi Solutions Private Limited. We'll move to the next slide. On behalf of the management and the entire team, I would like to welcome all the participants present here. So, coming towards our today's most interesting topic, that is banking management in Tally Prime. Let's move ahead to the introduction part of banking management in Tally Prime. Ma'am, next slide, please. The banking feature in Tally Prime provides an end-to-end solution to the banking needs for running your company. Tally Prime आपको end to end solution provide करते हैं as per your banking needs to run your company. You can use its e-payment capability to make timely payment to your parties, manage checks, reconcile bank statements and others. आप e-payment capability के थ्रू टाइम टू टाइम पेमेंट्स कर सकते हैं. आपका पार्टीज को एज वेल एज चेक्स मैनेज कर सकते हैं एंड बैंक स्टेटमेंट रिकंसाइल कर सकते हैं. नाउ विल सी द फीचर्स व्हिच कम्स अंडर बैंकिंग मैनेजमेंट इन टैली प्राइम. मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So the first feature comes auto configured check printing. You can maintain record of all payment made using checks or if you have received payments through check from your parties. आप आपकी सारी पेमेंट्स के रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं जो चेक के थ्रू रिसीव किए गए हैं एंड जो आपकी पार्टी से चेक रिसीव हुए हैं. In Tally Prime, you can configure the checks based on the type of checkbook you use in your business in Tally Prime. Tally Prime में आप चेक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं based on the type of checkbook in your business. Now we'll move to the next slide. So the next feature comes checkbook management. Using the check management system, you can maintain multiple checkbooks and enable auto increment of check number during voucher entry. चेक मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आप मल्टीपल चेकबुक मेंटेन कर सकते हैं एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ वाउचर एंट्री यू कैन एनेबल auto increment of check numbers. This feature helps you to reduce manual errors and increase the speed of data entry. We'll move to the next slide. Okay, the next feature comes auto bank reconciliation. In Tally Prime, the bank reconciliation features simplifies the complexity of managing mismatches between your accounts. आपके अकाउंट्स में जो मिसमैचेस है
बैंक रिकंसिलिएशन फीचर वो मैनेज करने में हेल्प करता है. You can print bank reconciliation statement anytime you need. So we'll move to the next feature. The next feature comes e-payment. This feature is a unique capability that syncs your bank master, party master, and voucher entry into a common platform, sending the payment transaction to the bank. E-payment feature आपके पार्टी मास्टर, बैंक मास्टर एंड वाउचर एंट्री को सिंक करता है on a common platform. The next feature comes payment advice and deposit slip. Payment advice is a money order that is established at the initiative of the utility, and the check deposit slip option in the banking menu allows you to generate deposit slip for payment received through check or demand draft, which need to be deposited into the bank. Payment advice एक मनी ऑर्डर है जो एस्टैब्लिश हुआ है इनिशिएटिव ऑफ द यूटिलिटी के लिए. ऑल्सो बैंकिंग मेन्यू में चेक डिपॉजिट स्लिप ऑप्शन आपको अलाउ करता है डिपॉजिट स्लिप जनरेट करने के लिए जो पेमेंट चेक और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू रिसीव हुए हैं and which is used to be deposited into the bank. So this was all about the theoretical part of banking management in Tally Prime. So now I request Mr. Feroz to proceed ahead for the live demonstration. Thank you. Nice presentation. Thank you so much. Hello everyone. Myself Feroz Sayyed, presenting live demonstration on behalf of Raj Lakshmi Solution Private Limited. So आज मैं आपको बताना चाहूँगा बैंकिंग को कैसे यूज करें सिंपल वे में. बैंकिंग में और भी सिंपल ऐसे तरीके हैं जिससे हम हमारे अकाउंटिंग को इजीली हैंड ओवर कर सकते हैं. जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ. जैसे हमारा चेक प्रिंटिंग है. चेक प्रिंटिंग के लिए हम मैनुअली फिल करते हैं, उसमें हमारा बहुत ही टाइम वेस्ट होता है. तो उससे अच्छा हमको टैली में भी फैसिलिटीज अवेलेबल की गई है जिससे हम टैली में इजीली हमारे चेक के ऊपर प्रिंट आउट दे सकते हैं. उसके लिए हमको सबसे पहले जाना है अल्टरेशन में. हमारे लेजर में जो हमारा बैंक रहेगा, जिस बैंक का हमको चेक प्रिंटिंग देना है उस बैंक को अल्टर करना है. अल्टर करने के बाद में फर्स्टली इसको सबसे पहले प्रॉपरली पूरा डिटेल्स फिल करना है. जो भी उसका मैंडेटरी डिटेल है वो फिल करना है. एंड उसका बैंक नेम ये ऑनलाइन ट्रैक होता है, ये भी मैंडेटरी है. ये हमारा सर्च करके इसको इंटर करके सेव कर लेना है. देन उसके बाद में हमारा आगे के फीचर्स वर्क करेंगे, जैसे कि बैंक रिकंसिलिएशन हो गया, चेक प्रिंटिंग हो गया एंड ई पेमेंट हो गया. ये अदर पॉइंट हमारा ये ऑनलाइन बैंक सेलेक्ट करने की वजह से आएंगे. तो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया है बैंक कॉन्फ़िगरेशन में सेट अल्टर रेंज फॉर चेक बुक. अभी देख लीजिए ये सभी ऑप्शंस आपको चेक इनेबल करने के लिए सबसे पहले F12 में ऑप्शन दिए गए हैं. यहाँ से हमको पहले एक्सेप्ट करना है. जैसे कि ये ऑप्शन है प्रोवाइड चेक बुक एंड चेक प्रिंटिंग डिटेल्स. ये अल्टर में से यस करने के बाद में इसको सेव कर लेंगे. देन उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखेंगे. अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास चेक्स में भी कुछ बुक्स रहते हैं जो हमारे बैंक से मिलते हैं, तो हमको वो मेंटेन करने के लिए भी हम टैली में इजीली मेंटेन कर सकते हैं. जैसे हमारे मल्टीपल बुक्स रहते हैं चेक के, हमको हमेशा याद रखने के लिए हम टैली में मेंटेन कर सकते हैं, तो वो भी फैसिलिटीज अवेलेबल है. उसके लिए हमको ये ऑप्शन यस करने हैं सेट अल्टर रेंज फॉर चेक बुक. इसको यस कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा नंबरिंग सेट करना है चेक का कि किस नंबर से लेकर तो कहाँ तक का हमारा चेक अवेलेबल है. जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, मेरा सीक्वेंस 1 से चेक स्टार्ट है तो 10 तक. तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर जितने भी उसके अंडर में चेक रहेंगे आपको नंबर ऑफ चेक्स में कैलकुलेट होकर मिलेंगे. तो ये मेरा इसका नाम डाल देंगे हम बुक 1. ये मेरा चेक बुक 1 हो गया. इसके अलावा अदर भी और आपके पास चेक बुक है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. जैसे कि मेरा सेकेंड वाला ले लेता हूँ मैं 11 से लेकर तो
25 तक। फर्स्ट वाले रो में हमने लिए 10 चेक, सेकेंड वाले में 15 लिए। इसका नाम डाल देते हैं बुक 2। इसी तरह और भी अगर चेक बुक होंगे हमारे पास तो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं सेव कर लिया। देन उसके बाद में इनेबल चेक प्रिंटिंग एक ऑप्शन दिया गया है, उसको भी यस कर लेना है अगर हमको हमारे चेक का प्रिंट आउट टैली से देना होगा तो मैंने वो यस कर लिया। देन उसके बाद में सेट अल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, इसको यस करने के बाद में हमारा जो बैंक रहेगा, जैसे कि मेरा HDFC बैंक है, इसके अंडर में जितने भी चेक के फॉर्मेट रहेंगे वो सभी हमको टैली में दिखाई देंगे। अभी इसमें से हमको सिलेक्ट करना है कि हमको कौन से फॉर्मेट के ऊपर प्रिंट देना है। जैसे कि मैं ले लेता हूँ CTS फॉर्मेट 2। इसको इंटर कर लेने के बाद यहाँ पर उसका ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगा आपको। इसमें आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर ऑटोमेटिक दिया गया है। ये हमारा सेटिंग हो गया। देन उसके बाद में अगर आपको आपके कंपनी का नेम आपके चेक के ऊपर चाहिए प्रिंट आउट में, तो उसके लिए ये ऑप्शन यस करना है। जैसे कि यहाँ पर भी दिखाया है कंपनी नेम ऑन चेक। आप ये भी डाल सकते हैं, अदरवाइज इसके अलावा आपको दूसरा डालना होगा तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैं इसको यस कर लेता हूँ। यस करने के बाद में कुछ भी चेंज नहीं करना है, आगे सेव कर लेना है कंट्रोल A शॉर्टकट की से। देन उसके बाद यहाँ पर एक डेमो प्रिंट आउट दिया गया है, इसको प्रीव्यू करते हैं। प्रीव्यू करने के बाद देख लीजिए इस टाइप आपका चेक का फॉर्मेट रहेगा। अभी इसमें आपका पार्टी का आपका खुद का भी नाम आ चुका है, कंपनी का डेट भी आ गया है, फिगर इन अमाउंट फिगर आ गया है एंड वर्ड में भी आ गया है। इस टाइप हमारा ये एक सेटअप हो गया। देन इसमें और भी टाइप्स है, जैसे कि कॉन्फ़िगर में जाएंगे हम तो हमारा प्रिंटर पे भी डिपेंड करता है कि कोई प्रिंटर में हॉरिजेंटल रहता है, किसी में वर्टिकल सेंटर, वर्टिकल लेफ्ट, वर्टिकल राइट, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारे प्रिंटर के हिसाब से हमको सिर्फ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं सिलेक्ट करता हूँ हॉरिजेंटल एंड उसको सेव कर लेता हूँ कंट्रोल A से। ये हमारा सेव हो चुका है। देन इसके लिए हम प्रिंट देने के लिए वाउचर में जाना है। हम अगर पेमेंट वाउचर क्रिएट कर रहे हैं, पेमेंट में चाहिए हमको, तो ऊपर बैंक सिलेक्ट करके जो भी पार्टी को हम दे रहे हैं उस पार्टी का हम अमाउंट डाल देंगे। देन उसके बाद में यहाँ पर भी F12 में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं प्रिंटिंग चेक प्रिंटिंग रिलेटेड। यहाँ पर F12 करने के बाद में यूज ऑटो चेक नंबरिंग, जैसे कि हमारे 2 बुक सेट किए चेक के, तो वो नंबरिंग ऑटो सेट करने के लिए इसको यस कर लेना। ये यस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका चेक नंबर आ जाएगा। और सेकंड ऑप्शन है सिलेक्ट चेक रेंज जो हमारे 2 बुक है उसमें से ये ऑटोमेटिकली रेंज भी ले लेगा, इसको भी यस कर लेंगे। देन उसके नीचे ऑप्शन है प्रिंट चेक आफ्टर सेविंग वाउचर। अभी जैसे कि हम जो भी पेमेंट का वाउचर सेव करते हैं, सेव करने के बाद में एक ऑप्शन देंगे आपको कि चेक प्रिंटिंग के परमिशन के लिए ऑप्शन देगा। जैसे कि हमारा डिफॉल्ट वाला देता है वैसा ये चेक का भी देगा, तो उसके लिए ऑप्शन यस कर लेना ये। और उसके बाद में अगर हमको मैनुअली अगर चेक डिटेल्स अगर फिल करना होगा इसी इनवॉइस में प्रिंट लेवल पर, तो उसके लिए ये ऑप्शन यस कर लेना है। अभी मैं चारों ऑप्शन यस करके कंट्रोल A से सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद में देख लीजिए ट्रांजैक्शन टाइप में हमको यहाँ पर चेक ले लेना है। चेक लेने के बाद हमने जो ऑप्शन यस किए थे चेक रेंज का, उसमें जो हमारे 2 बुक ऑलरेडी लिए आ गए हैं, तो उसमें से हमको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि हमको कौन से बुक में से कितना चेक नंबर कितना लेना है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं फर्स्ट वाला ले लेता हूँ। देन उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट नंबर कितना लेना है, हमारा चेक नंबर कितने नंबर का लेना है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली 1 आ चुका है क्योंकि हमने ऑप्शन यस किए ऑटो चेक नंबरिंग का। तो मैं उस 1 के अलावा 5 नंबर ले लेता हूँ, उसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन आ गया है। अभी ये हॉरिजेंटल फॉर्मेट में है, तो यहाँ पर हम जब सेव करेंगे बिल तो उस टाइम आपको प्रिंट का ऑप्शन देंगे चेक का। तो इसी टाइप हम यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं। इसमें पूरी तरीके से डिटेल्स आ चुकी है। एंड उसके अलावा जो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बताया जो हमारे प्रिंटर रिलेटेड है, तो वो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर में मिल जाएंगे। इसको सेव कर लेते हैं।
देन इसके बाद यहाँ से प्रिंट दे देना है, ये हमारा चेक पर प्रिंट आ जाएगा। सेकेंड हमारा ऑलरेडी बना हुआ वाउचर है, उसके ऊपर भी हम प्रिंट दे सकते हैं। जैसे कि मेरा ये बिल बना हुआ है पहले, अभी यहाँ पर अल्ट भी करेंगे, करंट करेंगे, तो फर्स्ट वाला जो रिव्यू आएगा ये हमारा वाउचर का आएगा, पेमेंट का वाउचर जो है उसका आएगा। देन यहाँ से हम एक सिंगल स्केप करेंगे तो हमारे को चेक प्रिंटिंग का भी ऑप्शन दे देगा। अभी देख लीजिए, प्रीव्यू करेंगे तो ये चेक प्रिंटिंग का आ गया। तो इसके लिए हमको ऑप्शन यस करना होगा, जो अभी मैं बताया हूँ। ये ऑप्शन यस करेंगे तो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेक प्रिंट के परमिशन देगा। देन उसके बाद में हमारा जो चेक नंबरिंग का है, जो हमने बुक सेट किए थे, वो भी हम सेट कर सकते हैं। जैसे हमको लेना है जो बुक का, अभी मैं एक और फॉर एग्जांपल के लिए इनवॉइस लेता हूँ, 5000 का लेंगे। यहाँ पर ई पेमेंट की जगह पे चेक ले लेना है। देन यहाँ पर मैं सेकेंड इसमें से ले लेता हूँ। यहाँ पर ऑटोमेटिकली 11 ले लिया चेक नंबर, इसको सेव कर लेंगे। इस टाइप आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये हमारा सेट हो गया। देन उसके बाद में चेक डिटेल का डाल देंगे। तो ये हमारा चेक बुक का हो गया। अभी चेक बुक को हम बैंकिंग में भी जाकर देख सकते हैं। उसके लिए बैंकिंग में जाना है एंड चेक रजिस्टर्ड। चेक रजिस्टर्ड में देख लीजिए, अभी मेरे दो बैंक दिए हैं यहाँ पर, एक HDFC बैंक हो गया एंड सेकेंड वाला SBI बैंक हो गया। तो अवेलेबल चेक देखिए HDFC बैंक में 23 है, उसको इंटर करेंगे तो दो बुक हमने जो क्रिएट किए थे वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट वाले बुक में से हमारा एक चेक माइनस हो चुका है। हमने जो 5 नंबर का चेक लिए थे वो यहाँ से ऑटोमेटिकली निकल गए हैं। अभी बचे जितने हैं वो यहाँ पर आपको अवेलेबल में बताएंगे। उसके बाद में बुक 2 में से भी हमने 11 नंबर का चेक लिए हैं, वो भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली लिस्ट में से रिमूव हो जाते हैं। इसी टाइप हमारे हम मेंशन कर सकते हैं चेक। अभी यहाँ पर राइट साइड में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि मैं अल्ट भी करता हूँ, अल्टर चेक बुक जो हमने बनाए हुए हैं उसको हम अल्टर करके चेंज भी कर सकते हैं। एंड हमारे को अगर ऑर्डर और बैंक का ऐड करना होगा तो वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। उसके नीचे और एक ऑप्शन दिया है क्विक सर्च। क्विक सर्च में करेंगे तो हमारे दोनों बैंक के जितने भी, दोनों बुक के जितने भी चेक है उसका पूरा एक लिस्ट में दिखाई देगा। एंड कौन सा चेक यूज हुआ है वो भी आपको प्रॉपर वे में दिखाई देगा। अभी देख लीजिए, इसमें से 5 एंड 11 नंबर का चेक यूज किया हुआ है और कौन सी पार्टी को हुआ है, कितना अमाउंट हुआ है, वो भी यहाँ पर आपको डिस्प्ले करेगा। ये हमारे एक इजी तरीके से हम हमारा चेकबुक मेंटेन कर सकते हैं। देन अभी देख लीजिए, इसमें अनरिकंसाइल में भी आपको दिखाई देंगे। जो हमने अभी क्रिएट किए हैं वो रिकंसाइल में भी आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ से भी हम रिकंसिलेशन कर सकते हैं उसको। अभी यहाँ पर राइट साइड में ऑप्शन दिया है, जो हमने अभी वाउचर क्रिएट करे उसको रिकंसिलेशन के लिए अल्ट आर उसका शॉर्टकट किए, तो यहाँ से भी हम उसको रिकंसिलेशन कर सकते हैं। सेकेंड बैंक का भी सेम उसी तरह है। एंड उसको हम चेक प्रिंटिंग के लिए यहाँ से भी देख सकते हैं हम। जैसे कि बैंकिंग में जाने के बाद में चेक प्रिंटिंग में बैंक सिलेक्ट कर लेना है और हमको वाउचर सिलेक्ट करना है कि कौन से वाउचर का देना है। जैसे कि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर वाइज भी आपको दिखाई देगा। हमने जो 2 क्रिएट किए थे 5 एंड 11 नंबर चेक का, वो भी हम प्रिंट दे सकते हैं यहाँ से। ये भी एक शॉर्टकट तरीका है इसका। तो इसी तरह हम टैली से चेक प्रिंटिंग मेंटेन कर सकते हैं और हमारा चेक बुक भी मेंटेन कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद में हमें ना पोस्ट डेटेड चेक का देखेंगे। जैसे कि हमको कोई पार्टी से पोस्ट डेटेड के चेक आते हैं,
तो उसको हम टैली में कैसे मेंटेन करें वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। या फिर कभी हम पार्टी को दे देते हैं कि पोस्ट डेटेड वाला चेक, तो ये सभी हम टैली में इजीली मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए हमको जाना है वाउचर में। जैसे कि हम पार्टी को दे रहे हैं पोस्ट डेटेड चेक, उसके लिए पेमेंट की एंट्री पास करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में एक ऑप्शन दिया है पोस्ट डेटेड, उसका शॉर्टकट की है Ctrl+T। उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा पोस्ट डेटेड में। देन अभी हमको डेट ले लेना है। डेट हम क्या लेंगे, आगे का डेट लेंगे, जब हमारा चेक क्लियर होने वाला है उस टाइम का हम डेट ले लेंगे। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 10 नवंबर, 10 नवंबर ले लेंगे। देन हमारा बैंक सिलेक्ट कर लेना है, HDFC बैंक ले ले। उसके बाद में हमको पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे, हमारा RS टेक्सटाइल हमारा पार्टी है। देन फिगर डाल देंगे, 20,000 का मैं चेक दे रहा हूँ उनको। अभी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप में हमको सेट करना है चेक। चेक के बाद में इंस्ट्रूमेंट नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं हम ऐसे, जैसे कि चेक बुक में से कौन सी बुक में से हमको चेक देना है। मान लीजिए मैं लेता हूँ बुक 1 में से। बुक 1 में से हमको चेक नंबर कितना लेना है वो यहाँ पर हमको मेंशन कर लेना है कि मैं से इंस्ट्रूमेंट नंबर मैंने 6 ले लिया एंड उसको सेव कर लिया। देन यहाँ पर जो डेट आएगा, इंस्ट्रूमेंट डेट आएगा जिस दिन हमारा चेक क्लियर होने वाला है, उसके लिए मैं 10th नवंबर ले लिया। एंड यहाँ पर PDC इशू डेट में हमको डेट लेना है जिस दिन हमको चेक मिला है। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट ले लेते हैं अपन, तो हमको आज की डेट में चेक मिला है और वो हमारा 10 तारीख को क्लियर होने वाला है। एंड इसको आपका जो भी नोट होगा यहाँ पर मेंटेन करके सेव कर सकते हैं। ये मैंने सेव कर लिया। इसका रिपोर्ट देखने के लिए हमको जाना है बैंकिंग में एंड बैंकिंग में यहाँ पर आपको दिखाई देगा पोस्ट डेटेड समरी। पोस्ट डेटेड समरी में बैंक सिलेक्ट कर लेंगे। अभी देख लीजिए हमने 20,000 का इश्यूड में डाले थे, जो हमने पार्टी को दिए वो इश्यूड में आएंगे और जो हमको हमारे को पार्टी से मिला है वो रिसीव्ड में आएगा। तो अभी हमने इश्यूड में क्रिएट करें तो यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे, एक मेरा पहले का था एंड अभी का ये वाला आ गया नीचे का। अभी देख लीजिए ये पूरे डिटेल के साथ आ गया है। जैसे कि 10 तारीख का इनवॉइस है जो है पर्टिकुलर पार्टी में आ गया एंड इंस्ट्रूमेंट नंबर आ गया, इंस्ट्रूमेंट डेट जो डेट को क्लियर होने वाला है एंड उसका स्टेटस पेंडिंग आ गया है। तो इसको एंटर करेंगे तो हमारा बिल ओपन हो जाएगा। ये हमारा पार्टी को जो देंगे हम इश्यूड में आ जाएगा और कितने नंबर है उसमें काउंट में ऑटोमेटिक 2 आ जाएंगे। एंड उसके बाद में मैं लेता हूँ रिसीव्ड के लिए। हमको अगर पार्टी से कोई चेक मिला होगा तो वो भी हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए रिसिप्ट की एंट्री पास करना है, उसका डेट ले लेंगे 11 नवंबर, HDFC बैंक। दूसरा पार्टी ले लेंगे हम, इसका 25,000 अमाउंट सपोज हमको आया है। देन उसके बाद में यहाँ से लेंगे पोस्ट डेटेड, उसका स्टेटस चेंज करना है हमको, पोस्ट डेटेड ले लें। अभी यहाँ पर देख लीजिए चेक DD आया है, पहले जो था हमारा पेमेंट में वो ओनली चेक आया था, अभी चेक DD आया है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर सिलेक्ट करना है जो भी हमको पार्टी से मिला है। मेरा डाल दिया मैंने जो पार्टी से मिला था चेक नंबर। इश्यू डेट डालना है इंस्ट्रूमेंट डेट में एंड उसके बाद में पार्टी का बैंक सिलेक्ट करना है जो बैंक का हमको चेक रिसीव हुआ है। अभी मैंने ICICI बैंक सिलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद में PDC रिसीव डेट करना है जिस डेट पे हमको चेक मिला है। तो मैंने ये 5 नवंबर लेकर इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद में देख लीजिए बैंकिंग में जाना है और पोस्ट डेटेड समरी में HDFC बैंक। अभी देख लीजिए यहाँ पर मेरा रिसीव्ड में 1 था, अभी 2 हो गए हैं। अभी इसको इंटर करेंगे तो मेरे 2 इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। अभी का ये नीचे वाला अभी का आया है और ये RS टेक्सटाइल वाला ये मेरा पहले का इंस्ट्रूमेंट था। अभी ये दोनों चेक हमको पार्टी से मिले हैं। अभी दोनों का स्टेटस पेंडिंग आ रहा है। अगर इसको सपोज हमको अभी 10 तारीख को क्लियर होने का ऑफर दिया था
बट ये 10 तारीख को नहीं, ये कल ही क्लियर हो गया चेक। तो इसको चेक क्लियर करने के लिए यहाँ से क्या करना है, सिर्फ डेट चेंज करना है। जैसे कि हमने 11 नवंबर लिए है, तो इसको 6 नवंबर ले लेंगे, 6 नवंबर ले लेंगे एंड इसको करेंट कर लेंगे। यहाँ से हमारा जो स्टेटस है करेंट कर लेंगे। करेंट करने के बाद में इसको सेव कर लेना है। तो यहाँ से निकल जाएगा, ये पोस्ट डेटेड में से निकल जाएगा। अभी बचा है ओनली 1। या फिर अभी दूसरा एक और के केस में, जैसे कि 11 तारीख को हमारा क्लियर होने वाला है, तो 11 तारीख को ही हमको क्या करना होगा, बस यहाँ से करेंट कर लेना है। बस करेंट कर लेंगे, उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, देन उसके बाद में सेव कर लेना है। सेव करेंगे तो ये यहाँ से पोस्ट डेटेड में से रिमूव हो जाएगा वो। तो इसी टाइप हम पोस्ट डेटेड वाचर चेक हम मेंशन कर सकते हैं, टैली मेंटेन कर सकते हैं। इसका सेपरेट रिपोर्ट भी रहेगा, जैसे कि जितने बैंक के सभी बैंक वाइज आप देख सकते हैं। तो ये हमारा पोस्ट डेटेड चेक का था। देन उसके बाद में बैंक रिकंसिलेशन देखेंगे। बैंक रिकंसिलेशन में 2 तरीके होते हैं, एक ऑनलाइन बैंक रिकंसिलेशन होता है और दूसरा मैनुअली होता है। ऑनलाइन के लिए हमको बैंक से जो स्टेटमेंट मिलता है एक्सेल में, वो फॉर्मेट लगता है हमको, और मैनुअली में इजी तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी उसके लिए हमको क्या करना है, बैंक रिकंसिलेशन के लिए कुछ फीचर्स ऑन करना होगा। अभी मैं लेजर में जाऊंगा, मेरा बैंक HDFC बैंक को अल्टर करूंगा। अल्टर करने के बाद में डिटेल तो मैंडेटरी है, पूरी फिल करना जरूरी है। ये करने के बाद में यहाँ पर दिखाई दे रहा है एनेबल ऑटो रिकंसिलेशन। अगर यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा होगा तो F12 में जाना है। F12 में जाने के बाद थर्ड पे ऑप्शन है सेट बैंक रिकंसिलेशन एंड ई पेमेंट, इसको यस कर लेना है। यस करने के बाद में ये ऑप्शन यस कर लेंगे। देन उसके बाद में सेट अल्टर ऑटो रिकंसिलेशन कॉन्फ़िगरेशन। अभी इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमारा जो एक्सेल शीट जो मिलता है, जो हमको टैली में इंपोर्ट करना है, अगर उसका परमानेंट पाथ सेट करना होगा आपको टैली में, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक लोकेशन दिया है बैंक स्टेटमेंट, यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। तो इसको मैं नो करता हूँ फिलहाल। देन उसके बाद में ई पेमेंट, जो हमारा ई पेमेंट रहता है, उसका भी ऑप्शन यहाँ से दिया गया है। तो इसको इनेबल करके हम ई पेमेंट की प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैं बैंक रिकंसिलेशन का ऑप्शन यस कर चुका हूँ। उसके बाद में हमको जाना है बैंकिंग में। बैंकिंग में जाने के बाद बैंक रिकंसिलेशन, बैंक सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में देख लीजिए इंपोर्ट में जाना है, अल्ट ओ, एंड उसके बाद बैंक डिटेल्स ऐड कर लेना है। जो हमारा बैंक डिटेल रहेगा एक्सेल फॉर्मेट में, वो हमको यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है बस। तो ऑटोमेटिक हमारा बैंक डिटेल ऑन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा उसके बाद। देन उसके बाद वापस इंपोर्ट में जाना है एंड बैंक स्टेटमेंट, जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा वो इतने फॉर्मेट में रहेगा, जैसे कि CSV, डेलिमिटेड, एक्सेल एंड सपोर्टेड। तो इसमें से जो भी हमारा फॉर्मेट है वो एज अ सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, जैसे कि एक्सेल ले लेते हैं हम। एंड उसके बाद में जो हमारा फाइल नेम रहेगा फॉर्मेट का, वो बस फाइल नेम डाल देना है यहाँ पर और इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद में आपका रिकंसिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद में अल्टर कर लेना है ऑल अनरिकंसिलेशन। ये इस टाइप हम ऑनलाइन रिकंसिलेशन कर सकते हैं। सेकेंड हमारा जो है दूसरा तरीका, वो है मैनुअली। अभी देख लीजिए जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन है यहाँ पर आपको डिस्प्ले करेंगे। अभी इसमें से 3 तरीके से हम इसको रिकंसिलेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैनुअली में अभी देख लीजिए, आप ऐसा डेट डालकर भी सभी का सेट कर सकते हैं। ये रिमूव हो जाएंगे यहाँ से, डेट डालने के बाद इंटर करेंगे तो। और सेकंड ऑप्शन है सेट बैंक डेट, नीचे राइट साइड में ऑप्शन है, अल्ट एस उसका शॉर्टकट की है। उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं बैंक डेट टाइप। जैसे कि अभी इंस्ट्रूमेंट डेट आया है फर्स्ट, अगर हम इंस्ट्रूमेंट डेट पे अगर क्लिक करेंगे तो अभी जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट डेट रहेगा तो वो डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर बैंक रिकंसिलेशन की डेट में ले लेगा। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर 5 अक्टूबर है तो यहाँ 5 अक्टूबर आ गया, या 4 नवंबर है तो 4 नवंबर। इसी टाइप ये इंस्ट्रूमेंट डेट ले लेगा और रिकंसिलेशन कर लेगा। दूसरा ऑप्शन है सेट बैंक डेट में न्यू डेट, मीन्स हमको इससे हटकर डेट डाल देना है। जैसे कि हमारे बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है,
एक ही डेट में अगर हमको क्लियर करना होगा तो न्यू डेट पे क्लिक कर लेना है, और जो डेट पे हमको क्लियर करना है वो डेट यहाँ पर डाल के इंटर कर लेना है। तो ऑटोमेटिकली बैंक डेट में वही डेट आपको दिखाई देंगे, एंड उसके बाद सेव कर लेंगे तो पूरा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और थर्ड वाला जो ऑप्शन है वाउचर डेट, अभी जो भी हमारे वाउचर डेट जो रहेंगी वो डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लेगा। जैसे कि यहाँ पर 5 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर लेंगे, 4 नवंबर, सेम एज इट इज उसका डेट उन्हें ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। इसमें से सपोज हमको कुछ ट्रांजेक्शन हमारे सस्पेंस में है, हमको ये अभी रिकंसिलेशन नहीं करना है, तो उसका डेट रिमूव कर देना है। एंड जो जो इसको करना है हमको, मान लीजिए मैं एक कर लेता हूँ 50,000 का, डेट डाल के यहाँ से इंटर कर लेना है बस, तो ऑटोमेटिकली वो लिस्ट में से रिमूव हो जाएगा, रिकंसिलेशन में चला जाएगा वो। इसी टाइप हम मैनुअली भी रिकंसिलेशन करते हैं। ये दो तरीके हमारे रिकंसिलेशन के लिए है। तो ये हमारा रिकंसिलेशन हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं पेमेंट एडवाइस और डिपॉजिट स्लिप। पेमेंट एडवाइस, अगर आपको पार्टी को कोई ट्रांजेक्शन अगर बचा है, पार्टी का कोई पेमेंट बचा हुआ है देने या लेने का, तो उसके लिए हम एक पेमेंट एडवाइस दे सकते हैं पार्टी को। पूरा जितना पेंडिंग उसका इनवॉइस रहेगा उतना इनवॉइस का दे सकते हैं। जैसे कि हमें बैंकिंग में जाते हैं, उसके बाद में पेमेंट एडवाइस में सिलेक्ट करना है कि कौन सी पार्टी का हमको पेमेंट एडवाइस देना है। मान लीजिए मैं पावर सॉल्यूशन पार्टी को लेता हूँ, अभी इसका 2 ट्रांजेक्शन पेंडिंग है। अभी इसको 2 तरीके से हम उसको पेमेंट एडवाइस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इसको सेलेक्ट कर लेना है, दोनों को भी कंट्रोल स्पेस से ऑल सिलेक्ट हो जाते हैं, जितने भी आपके ट्रांजेक्शन है सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। देन अल्ट पी करने के बाद करंट में जाएंगे, और इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है प्रिंट पेमेंट एडवाइस, प्रिंट ईच ट्रांजेक्शन ऑन अ फ्रेश पेज। जितने भी इसके ट्रांजेक्शन है सभी सेपरेट पेज पे दिखाई देंगे। तो इसको मैं यस कर लेता हूँ एंड प्रीव्यू कर लेता हूँ। प्रीव्यू करने के बाद देख लीजिए 20,000 हमारा अमाउंट है, ये सेपरेट इनवॉइस आ गया है। ये हमारा पेमेंट एडवाइस है, ये हमको पार्टी को दे देना है, नीचे सिग्नेचर कर लेना है एंड पार्टी को देना है। इस टाइप हम हमारा पेमेंट एडवाइस निकाल सकते हैं टैली से। ये एक ऑप्शन हो गया। सेकेंड, अगर हमको पर्टिकुलर इनवॉइस को देना है, उसको ओपन करके प्रीव्यू कर लेंगे। प्रीव्यू करने के बाद में कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है प्रिंट पेमेंट एडवाइस, इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल ए से एंड प्रीव्यू कर लेंगे। ये सिंगल वे में हो गया। इस टाइप भी हम दे सकते हैं, पर्टिकुलर इनवॉइस अगर देना होगा आपको तो इस टाइप दे सकते हैं हम। ये 2 तरीके हो गए पेमेंट एडवाइस के। देन उसके बाद में डिपॉजिट स्लिप, जैसे कि हमको बैंक में जाकर डिपॉजिट स्लिप के लिए एक स्लिप फिल करना पड़ता है, उसमें बहुत ही टाइम जाता है, जैसे कि पेन से फिल करना पड़ता है, उसमें पूरे डिटेल्स फिल करना पड़ता है। तो टैली में ऐसी फैसिलिटीज दी है कि हमको डायरेक्टली टैली से डिपॉजिट स्लिप की प्रिंट मिलेंगी आपको, चाहे वो चेक से हो या फिर कैश डिपॉजिट हो, दोनों के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो उसके लिए बैंकिंग में जाएंगे एंड डिपॉजिट स्लिप, HDFC बैंक। अभी मेरा ऑलरेडी एक इनवॉइस बना है पेमेंट का, मान लीजिए 25,000 का मेरा इनवॉइस है। इसको हमको बैंक के लिए फिल डिपॉजिट स्लिप निकालना है। अभी देख लीजिए, सिलेक्ट कर लेना है हमको, यहाँ से स्पेस बटन से सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद में प्रिंट देना है, अल्ट पी करंट, एंड उसके बाद प्रीव्यू में जाएंगे तो ये हमारा चेक नंबर आ गया। ये चेक डिपॉजिट करना है फॉर एग्जांपल हमको, तो उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो जो भी बैंक है आपका, HDFC बैंक आ गया, आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम यहाँ प्रॉपर वे में आ गया, एंड चेक नंबर, उसका डेट, बैंक ने जो बैंक ने हमको डालना है वो ICICI बैंक, उसमें डाल दिए, उसका अमाउंट, एंड हमारा सिग्नेचर का भी ऑप्शन दिया है।
ये फर्स्ट वाला बैंकर्स कॉपी हो गया, सेकेंड वाला कस्टमर कॉपी। इस टाइप भी हम चेक के लिए टैली से प्रिंट आउट दे सकते हैं। ये हमारा चेक के लिए होगा। देन उसके बाद में और एक ऑप्शन है, जैसे कि हमारा कैश रहता है, तो कैश के लिए एक रिसिप्ट की एंट्री पास, कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री पास कर लेंगे हम। F4 से कॉन्ट्रा, डेट ले लेना है उसका 5 नवंबर, ऊपर बैंक ले लेंगे एंड नीचे हमको ले लेना है कैश। मान लीजिए 50,000 लेता हूं मैं। $50,000 लेने के बाद यहाँ पर उसका ट्रांजैक्शन टाइप में कैश आएगा। एंड उसके बाद में देख लीजिए 50,000 में हमारे नोट कौन से है, मींस 2000 की कितने नोट्स है एंड 1000 की कितने, वो सॉरी 500 के कितने, यहाँ पे हमको मेंशन करने हैं। मान लीजिए मेरे 10 है, 2000 35 डाल देंगे। $25 में ले लेता हूँ 2000 के नोट से, इसको सेव कर लेंगे। अगर बैंक होगा तो यहाँ से ऐड कर लेना है। यहाँ पर हमारा बैंक आ जाएगा, ICICI बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेव कर लिया हमने। उसके बाद में बैंकिंग में जाना है। बैंकिंग में जाने के बाद में डिपॉजिट स्लिप में HDFC बैंक, उसके बाद में यहाँ पर राइट साइड में दिया है F5 कैश। कैश पे क्लिक करेंगे तो कैश में जो भी हमारा वाउचर रहेगा वो आ जाएगा। इसको अल्ट भी कर लेना है एंड प्रीव्यू कर लेना है। उसके बाद में देख लीजिए जो बैंक में जैसा स्लिप आता है उसी टाइप हमको टैली से भी मिल रहा है। इस टाइप हम हमारे डिपॉजिट स्लिप में ऐड कर सकते हैं। अभी देख लीजिए 2 कॉपी आ चुकी है, ऊपर बैंकर्स के लिए भी आ गया और कस्टमर के लिए भी कॉपी आया। तो इस टाइप हम हमारे टैली से इजीली अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं, जिससे हमको चेक प्रिंटिंग में और ऑर्डर्स में इश्यू ना आए, सिंपल वे में सभी हमारा वर्किंग हो जाए। सो ये था हमारा बैंकिंग। दिस वाज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। Okay, thank you Anam and Firoz for your presentation. So now if anyone have any questions regarding to the today's topic, you can do connect your key account manager for any support and any other requirements. So soon this session will be uploaded in the YouTube channel. So be connected to our social media to get the updates. So thank you so much for joining us for today's session. So now we will wind up the session. Thank you everyone.